Okay, good morning everyone. I hope in the last step all of you have completed all four tables with all data, right? Put your status into a chat immediately. How many of you have completed all four tables? Okay, let me okay. How many how many of you have completed all the queries of practical one? Select with all column and all rows. It is done or it's remaining? डन सर डन। एक्सप्लेन हो गया था मेरा आज? ओके प्रैक्टिकल वन सर हो गया। ओवर हो गया था. ओके फाइन. So let's start the practical 2. For that you require some fundamentals. So I am going to share the screen and I am explaining you. Now, is it visible? Yes, sir. Okay. Now, if while we are okay. After that, we have seen the describe, suppose account, and then select star from account and its variants we have seen. Now for the practical 2, let me delete all these things and let's start the practical 2. For the practical 2, we need to learn some commands like update, alter, because some of you have made the mistake, right? और आपने क्वेश्चन पूछा था सर इफ यू वांट टू delete this column, if you want to delete this record, or I have entered the wrong name, then how we can change it. So for that I am explaining you the update command. Update command, right? So this is the syntax: update, and after table name, लोग को join किया था, just then set, and then column name. Which column name is you have to write here? New value. If you want to update that column name, you need to write here, and new value you need to write here, right? Comma, so on. You can update multiple columns at a time. So column 1, column 2 are with new value. कहाँ पे करना है? Where old column name you need to mention. Old column name you need to mention here with old value. अभी हमें फिल्टर पता चलेगा value, right? Okay. If you are not understanding, first let me tell you. Select star from
account. It means it will give all columns, all rows, right? If I write here where close, it means it will filter out that condition. City is equals to, let's say, Rajkot. So it will give those records whose city is equals to Rajkot. So it will display few rows. So रो फिल्टरेशन के लिए वेर क्लोज यूज होता है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ स्टार यू कैन राइट दी particular column name like account number, comma, name, so on, right? Already you have practiced in the practical one. Similar way, update table set column name, update table name set column name is equals to new value. You can change the multiple column values at a time where column name is equals to value. Let me give you example so you can get the update account is our column set. क्या सेट करना है हमें? नेम. योर फर्स्ट क्वेरी इज नेम पटेल. The first query is like that, change the name Patel Jigar to Patel Hiran. Practical list आपने open किया है. By default every time in every lab you need to open the practical list. तो पटेल जिगर की जगह पटेल हिरन करना है. सो पटेल हिरन इज द न्यू वैल्यू. सो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं अपडेट अकाउंट सेट नेम इज इक्वल टू पटेल हिरन. कहाँ पे सेट करना है? वेयर नेम इज इक्वल टू व्हाट? पटेल जिगर जहाँ पे है वहां पे. नाउ यहाँ पे पटेल जिगर में आपने जो भी डेटा इंसर्ट किया है वो स्पेलिंग लिखना है, ठीक है. जिगर का जी कैपिटल जो भी आपके डेटा में इंसर्ट टेबल में इंसर्ट है वो करना है. ओके okay, let me copy this one. Okay, we will run it later. So by this way you can update. सपोज आपको उसके सिटी भी अपडेट करना है तो यू कैन पुट सिटी इज इक्वल्स टू लेट्स से राजकोट. न्यू वैल्यू पटेल जिगर जिसका नेम होगा उसका नाम भी चेंज होगा और उसका सिटी भी चेंज होगा. सो फर्स्ट इट विल आइडेंटिफाई दिस रो. इसकी जगह आप कुछ भी दे सकते हो. फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग यू. अपडेट अकाउंट set name is equals to, if we know the account number of पटेल जिगर तो हम उसको इस तरीके से भी अपडेट कर सकते हैं. where अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू पटेल जिगर का अकाउंट नंबर क्या है याद है किसी को? A001. सो इससे दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा. समझ में आया? इससे भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, इससे भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा. थिंग इज दैट by this way we can get the unique id, by this way we can also get the unique id. but sometimes सपोज यहाँ पे अकाउंट नंबर A001 है और A002 है, दोनों का नेम सेम हुआ तो पटेल जिगर हुआ तो दो रो अपडेट हो जाएगी ना. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यूनिक रो है उसको फिल्टर में लगाना चाहिए. सो उस टाइम पे यू कैन यूज अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू A001. आर यू गेटिंग? Yes, sir. क्लियर? okay, let me run that thing. नोटबुक से कॉपी कर लूँ. पहले मैं आपको टेबल दिखा दूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट. मेरा अब देखो पटेल जिगर को हम अपडेट करेंगे पटेल हिरन. लेट मी रन
अपडेट अकाउंट सेट नेम पटेल हिरेन एंड सिटी राजकोट, उसका सिटी मेहसाणा है अभी, ठीक है। एट ए टाइम आई एम चेंजिंग अपडेटिंग टू थिंग्स, वन रो अपडेटेड। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट करके फिर से चेक करेंगे वेदर इट इज अपडेटेड और नॉट। So Patel Hiren and Rajkot, so it means it is updated. Now my question is that suppose A001 name is Patel Hiren, A004 it is also Patel Hiren. So whenever you are updating Patel Hiren, it will update two rows. So instead of that, you can select, you can go for any unique row. So आप ऐसा करेंगे A001 में अपडेट करो तो दूसरे में नहीं होगा, तो एट दैट टाइम यू विल कॉपी दी सेकंड एग्जांपल, आंसर दोनों का सेम ही रहेगा ना। आप अकाउंट नंबर के साथ देंगे, अकाउंट नंबर यूनिक है, प्राइमरी की रहेगी, तो एक ही रो अपडेट होगी, नाम भले डुप्लीकेट हो। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। इज एनी क्वेरी? नहीं, वेयर क्लोज में हमें कौन सी कंडीशन यहाँ पे इनपुट करनी है? ओके, ये वेयर क्लोज किस लिए है? रो फिल्टर करने के लिए। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इट विल फेच अकाउंट नंबर इज इक्वल टू A001, वो पहले करेंगे। सो यहाँ पे देखो A001 है, मैं यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, चलो मितेश अंडरानी। तो क्या होगा, हो गया चेंज, पटेल मितेश, ठीक है। मैं आपको ओके ओके नो इश्यू, मैं आपको फिर भी दूसरा डुप्लीकेट करके दिखा रहा हूँ, आप नहीं करना हो क्योंकि आपका डेटा पूरा चेंज हो जाएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, क्या A02 में भी मितेश डाल रहा हूँ, अपडेट हो जाएगा। डुप्लीकेट नेम हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर आपके अलग अलग है, नाम सेम हो सकते हैं ना, आपके क्लास में होगा ही शायद। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, आप देखो पटेल मितेश A002 एंड A001 दोनों में नेम सेम है। तो व्हेन यू आर कॉपी पेस्टिंग दिस थिंग, when you are copy pasting this syntax, अब हमें क्या करना है, मितेश, तो पटेल मितेश की जगह पटेल हिरेन करना है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, दो रो अपडेट होगी ना। लेट्स रन एंड चेक इट, टू रोज अपडेटेड, देखा आंसर। तो अब देखते हैं, ये तो क्या हुआ, गड़बड़ हो गई है डेटाबेस में, एक करना था तो दूसरे का नाम भी चेंज हो गया। तो उससे अच्छा मैं क्या करूं, कोई ऐसी कॉलम पकड़ूं जिससे मैं यूनिक रिकॉर्ड मिले। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं अकाउंट अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू A001। तो क्या करेगा, A001 क्या है, पटेल हिरेन, ठीक है, वो सही है। तो पटेल A02 में हम चेंज कर दे, A02 में क्या नाम था, पटेल रमेश था ना, पटेल रमेश था। तो मैं यहाँ पे उसका नाम चेंज कर रहा हूँ रमेश, ठीक है। तो वो क्या करेगा, A02 को रो फिल्टर करेगा वेयर क्लोज से और यहाँ पे पटेल रमेश कर देगा, पटेल हिरेन एज इट इज रहेगा। क्लियर, वन रो अपडेटेड। नाउ आई थिंक यू क्लियर, क्लियर हो गया, पटेल रमेश A002 A001, राइट? डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट? नो, ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट कमांड इज द अल्टर कमांड। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, नोटपैड में नहीं लिख रहा हूँ। अल्टर कमांड,
तो अल्टर कमांड मल्टीपर्पज है. अल्टर कमांड इज यूज फॉर अल्टरेशन ऑफ टेबल स्ट्रक्चर. टेबल स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड हो सकता है? कॉलम, नई कॉलम ऐड करनी है, कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको रीनेम करनी है, उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, उसकी साइज चेंज करनी है, डिलीट करनी है. सो अल्टर कमांड इज मल्टीपर्पज कमांड. So by using alter command, it is used to alteration the table structure. There are various use of the alter command, such as to add a column to existing table, to rename any existing column, to change data type of any column, or to change or modify its size. Alter is also used to drop the column. आपका क्वेश्चन था सर मैंने कॉलम नेम गलत कर दिया स्पेलिंग, तो कैसे करेक्ट करें? तो अल्टर से होगा, अपडेट से नहीं होगा. अपडेट से क्या अपडेट होगा? ओनली डेटा रो, ओनली रो. लेकिन स्ट्रक्चर कैसे अपडेट होगा? अल्टर से. स्ट्रक्चर मतलब कॉलम आपको कोई ऐड करनी है, कॉलम कोई रिमूव करनी है, उसको रीनेम करनी है, उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, साइज चेंज करनी है, देन यू कैन यूज दी अल्टर कमांड, राइट. सो अल्टर कमांड कैसे चेंज होगा? Okay, just 1 minute. I'm having one document. Let me open. So no need to write and everything. And, you can save our time. Okay. Alter command is used to perform this many operation. Add a column, rename existing column, data type change करने के लिए, size change करने के लिए, और drop column करने के लिए. First we will see this one. Add column in existing table. Suppose चलो मैं आपको जस्ट 1 मिनट है, फिर गलती पूरी एंटायर स्क्रीन कर दूँ, सेव करने में मिस आया. Okay, in account table we have a account number, name, city, balance and loan taken, right? ये column है. If we want to add one column address into account table, then we can use the add column. For that, this is the syntax. Alter table, table name, add column name, data type and size. Column name, data type and size. Let me give you an example. You can take here. Okay, alter table account, add कीवर्ड है, add कीवर्ड है. add से क्या होगा? कॉलम ऐड होगी. which column we want to add? that you should write into bracket address, data type उसकी varchar2 और उसकी size. ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है. क्लियर? लेट मी रन. टेबल अल्टर्ड, ऐसा मैसेज आया, टेबल अल्टर्ड. अब देखना है कि ये कॉलम ऐड हुई है कि नहीं. सो दो तरीके से देख सकते हैं. एक तो डिस्क्राइब से हमें पता चल जाएगा स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं. तो डिस्क्राइब में चेक करो, एड्रेस कॉलम आ गई, यस एड्रेस कॉलम आ गई. दूसरा कैसे देख सकते हो? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट. आप बोलेंगे सर हमने तो सिर्फ कॉलम ऐड की, डेटा तो इंसर्ट नहीं किया है, तो अब कैसे करेंगे? एड्रेस में देखो क्या आया, डेस 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 डेस. तो इंसर्ट करना आपको आता है, that you know very well. So by using insert command, you can insert the address column, right? Fine. So ऐसे हम ऐड कर सकते हैं. अभी ऐड किया है तो रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है. अब ये क्या हुआ? एक ही कॉलम हमने ऐड की ना. अगर मल्टीपल करनी है तो ये रही सिंटेक्स. देखो सेम, कोमा करके अलग अलग कर दो. कॉलम नेम, डेटा टाइप 1, कोमा कॉलम 2, कोमा कॉलम 3, सो ऑन. दैट्स इट. सिमिलर जो हमने किया वो. ठीक है.
नेक्स्ट, एड अ कमांड कॉलम विथ डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू इट मीन्स अगर आपको कोई अभी एड्रेस हमने डाला, उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, लेकिन हमें कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू डालनी हो तो so let for that alter table student add column name data type and default is the keyword। डिफॉल्ट करके यहाँ पे आप डिफॉल्ट करके आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो। मैं इसको अभी रन कर रहा हूँ अकाउंट टेबल को। आप अकाउंट में नहीं करना, आप जो भी टेबल दिया है उसमें करना है, ठीक है। अल्टर टेबल अकाउंट एड डीओबी डेट डिफॉल्ट, तो सबकी डेट ये आ जाएगी। लेट मी रन टेबल अल्टर्ड। लेट्स टेक select star from account। लेट्स रन। आ गई डेट ऑफ बर्थ सबकी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अभी आप कोरिलेट कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म में कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाती है, और ऐसे आप डिफॉल्ट वैल्यू डेटाबेस में एंटर कर सकते हो, ठीक है। नाउ मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम इट मींस सपोज आपको उसका डेटा टाइप और उसकी साइज चेंज करनी है, तो उसके लिए पहले आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। डिस्क्राइब अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखो, लेट्स से अकाउंट नंबर वेरकेर 2 है, ठीक है। अकाउंट नंबर वेरकेर 2 है। वी आर गोइंग टू चेंज दी डेटा टाइप ऑफ अकाउंट नंबर कॉलम, उसका हम नंबर कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अल्टर टेबल मॉडिफाई कीवर्ड है। मॉडिफाई इज द कीवर्ड। क्या है कीवर्ड? मॉडिफाई। अल्टर टेबल, टेबल नेम, और टेबल नेम इज अकाउंट, मॉडिफाई इज द कीवर्ड। कॉलम कौन सी चेंज करनी है हमें? कॉलम सॉरी अकाउंट नंबर। डेटा टाइप उसकी क्या करनी है? न्यू डेटा टाइप। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, न्यू डेटा टाइप आपको लिखनी है। न्यू डेटा टाइप हमारी कौन सी रखनी है? नंबर, साइज 10, ठीक है। लेट्स रन इट विल गिव द एरर, मुझे पता है। दिया ना? क्यों एरर दिया? कुछ आइडिया एरर देख के? सर नंबर में साइज तो थोड़ी देते हैं। क्यों नहीं देते? अकाउंट नंबर नंबर में नहीं दे सकते? सर हम नंबर में तो ब्रैकेट में साइज नहीं लिखते जनरली। क्यों लिखते ही है, नंबर में साइज लिखते ही है 10,2 और 10। यस, इफ यू आर हैविंग कॉमन सेंस यू कैन रीड द एरर। एरर रीड करो, क्या लिखा है? कॉलम टू बी मॉडिफाइड मस्ट बी एम्प्टी टू चेंज डेटा टाइप। ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट ही है। कैसे? A001 वेरकेर 2 में है। ए मतलब अल्फा, 001 मतलब नंबर, तो अल्फा न्यूमेरिक वेरकेर 2 में डेटा है। तो अब आप जान चेंज करेंगे नंबर में, तो ए का तो मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो डेटा आपको अलाउड नहीं करेगा, डेटाबेस का ये कंस्ट्रेंट है, चेंज नहीं करने देगा। क्लियर है? किसकी डेटा टाइप चेंज होगी? जिसमें आपका डेटा कुछ नहीं है। तो हमारे पास ऐसी एक कॉलम है, कौन सी है? एड्रेस। अभी एड्रेस में हमने कुछ नहीं डाला, राइट। एड्रेस का पूरा क्या था? स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, चेक कर लेता हूँ। ADDRES है, पूरा ही डाला, एड नहीं डाला। एड्रेस का चलो नंबर ही ले लेते हैं, क्योंकि उसकी डेटा टाइप वेरकेर 2 थी। टेबल अल्टर चेक करो, डिस्क्राइब अकाउंट, एड्रेस नंबर आ गया, क्योंकि नंबर में डेटा नहीं था। क्लियर? अब उसकी साइज 10 है ना, तो साइज चेंज करनी है तो सेम सेम सिंटेक्स। साइज चेंज करनी है तो सेम सिंटेक्स, अल्टर टेबल अकाउंट, अकाउंट मॉडिफाई। मॉडिफाई से क्या होगा? उसकी डेटा टाइप मॉडिफाई हो जाएगी, साइज भी मॉडिफाई हो जाएगी। एड्रेस वेरकेर 2 30, नंबर 10 लिया था, अभी मैं साइज चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे डेटा टाइप पहले चेंज करने दी। नंबर साइज 10 थी, अभी मैं 13 कर रहा हूँ, 30। टेबल अल्टर्ड चेक करनी है साइज, डिस्क्राइब अकाउंट, लेट्स चेक इट।
हो गई 30 साइज, क्लियर। सो बाय दिस वे यू कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अब क्या सीखना है, रीनेम अ कॉलम, यस। डेटा टाइप चेंज करनी है तो मोडी एम्प्टी होनी चाहिए। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम, नाम से जेनिथ, क्वेश्चन फ्रॉम जेनिथ। If we change this size, then data should be empty or filled। अगर अभी हमने आपने देखा कि अकाउंट नंबर हम चेंज नहीं कर पाए क्योंकि उसमें डेटा ऑलरेडी था, लेकिन एड्रेस में तो डेटा नहीं है। और चलो नेम है, नेम कॉलम है ये हमारी नेम, उसमें वेर के 30 है। अगर मुझे उसकी साइज चेंज करनी है 30 की, लेट्स ट्राई, तो अलाउ करेगा कि नहीं करेगा वो हमें चेक करना है। एड्रेस में नेम में हमें साइज चेंज करनी है तो अलाउ करेगा कि नहीं करेगा वो हम चेक करते हैं। अल्टर टेबल काउंट मॉडिफाई, कॉलम कौन सी है, नेम, डेटा टाइप वेर केरी रखनी है, उसकी साइज 30 से हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है। लेट्स डिक्रीज, मैं 5 तक कर रहा हूँ, 50 में 5 कर रहा हूँ। लेट्स रन इट, विल बी रन। कैन नॉट डिक्रीज कॉलम लेंथ बिकॉज सम वैल्यू इज टू बिग। तो डिक्रीज कहां तक कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, आपकी जो वैल्यू है वो लेंथ के हिसाब से। सपोज अभी हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं 10 करके, चेक करते हैं 10 में अलाउ करते हैं कि नहीं करते। कैन नॉट डिक्रीज कॉलम लेंथ 20 में करते हैं चेक, टेबल अल्टर्ड 30 में से 20 हो गया क्योंकि हमने जो डेटा डाला है वो 20 से ग्रेटर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, सर कैन वी इंक्रीज दिस साइज, बट ऑब्वियस इंक्रीज करने में कौन सी दिक्कत है, 30 में से 40 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर 30 में से 5 और 10 कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा, पटेल रमेश में से क्या रहेगा, रमेश कहीं से कहीं चला जाएगा, पटेल में 5 कैरेक्टर ही रहेंगे। समझ में आया, इसलिए डेटा ट्रंकेट हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है डेटाबेस में। क्लियर, गुड, गुड क्वेश्चन। अब कहाँ पहुंचे हम, हाँ कॉलम रीनेम करनी है। चलो कॉलम रीनेम करने के लिए रीनेम कीवर्ड यूज होगा। हम कौन सी कॉलम रीनेम करेंगे, एड्रेस को ही कर देता हूँ। अकाउंट टेबल पे अकाउंट अल्टर टेबल अकाउंट रीनेम कॉलम, कॉलम इज द कीवर्ड, यू मस्ट हैव टू राइट हियर, राइट। कौन सी कॉलम अपडेट करनी है, लेट्स से एड्रेस, एड्रेस टू लोकेशन। तो मैं रन कर रहा हूँ, उसमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं, सिर्फ नेम ही चेंज कर रहे हैं। टेबल अल्टर्ड, लेट्स चेक इट, डिस्क्राइब अकाउंट, आ गया लोकेशन एड्रेस की जगह। क्लियर, सो बाय दिस वे यू कैन रीनेम। अगर मैं फिर से रीनेम कर दूं वही सेम सिंटेक्स, क्या अकाउंट, और यहाँ इसको इंटरचेंज कर दूं तो इसको मैं इंटरचेंज करूं तो क्या होगा, फिर से हो जाएगा लोकेशन टू एड्रेस, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। समझ में आ गया, अगर करनी हो तो, आपने कुछ गलती की है। अब आप देखो मैं आपको चोरी करने के तरीके दिखा रहा हूँ। अगर आपने गलती से कुछ मिस्टेक कर दी तो आप अब सब कुछ कर सकते हो, स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो, मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, डेटा भी आपने मिस्टेक किया है तो अपडेट कर सकते हो। नाउ इसका एडवांटेज क्या हुआ, व्हेन आई विल इंस्ट्रक्ट यू, सो डिस्प्ले दी रिकॉर्ड्स वो सिटी इज इक्वल्स टू मेहसाना, आपने स्मॉल में डाला है और मैं कैपिटल में आपको पूछ रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अपडेट करके डेटा अपडेट कर सकते हो। कॉलम मैंने अकाउंट नंबर की थी और आपने ले लिया बैलेंस नंबर, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ड्रॉप का कॉलम, ड्रॉप कॉलम के लिए अभी हम करते हैं एड्रेस कॉलम को ड्रॉप, हाँ हमने चेंज कर दिया, राइट। अल्टर टेबल अकाउंट, अकाउंट ड्रॉप एड्रेस, ड्रॉप का मतलब डिलीट करना,
तो एड्रेस कॉलम ड्रॉप हो जाएगी। हुआ कि नहीं? सेम वे से जा रहा है। हाँ, टेबल अल्टर, राइट। लेट्स चेक। इट्स इनवैलिड आइडेंटिफायर। ओके, मे बी डबल क्लियर हो गया है इसलिए। डिस्क्राइब अकाउंट, लेट्स चेक वंस। एड्रेस चली गई। ओके, डीओबी हम डिलीट कर रहे हैं अभी। अभी डेट ऑफ बर्थ डिलीट कर रहे हैं, वो भी हमने एक्स्ट्रा ही डाली थी। काउंट ड्रॉप, कॉलम नेम सही लिखनी है, बीओबी। अब देखो, आप बोलेंगे सर वहां का कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल। एज आई टोल्ड यू, टेबल नेम एंड कॉलम नेम आर नॉट केस सेंसिटिव, ओनली डेटा आर केस सेंसिटिव। टेबल अल्टर, डिस्क्राइब अकाउंट। हो गया हमारा ओरिजिनल टेबल जो था वो। उसमें सिर्फ नेम में साइज डिक्रीज हो गई है। साइज इंक्रीज करनी है तो अल्टर कमांड मॉडिफाई से कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल, पूरा एंटायर टेबल ड्रॉप हो जाएगा। पहले मुझे चेक करने दो अकाउंट टेबल काम का है। दूसरा वो टेबल आपको मैं डिलीट करना है। मितेश, चलो मितेश नाम का टेबल है, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। ड्रॉप टेबल मितेश, सो मितेश नाम का टेबल टेबल ड्रॉप। अब फाइंड टेबल पे जाओ और वहां पे चेक करो, मितेश नाम का टेबल है नहीं है, हो गया डिलीट। और अगर आपको यहाँ से चेक करना है तो आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। डिस्क्राइब मितेश रन, यू विल गेट एरर। ऑब्जेक्ट टू बी डिस्क्राइब कुड नॉट बी फाउंड। और क्या कर सकते हो? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मितेश, भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है? टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब टेबल बना ही नहीं है, ही नहीं, डिलीट हो गया। डन। अब नेक्स्ट, एक टेबल में से दूसरा टेबल बनाना है तो from one table, if you want to create another table with few columns or with all columns, then you can create that table by using this syntax। कौन सी? जो हमने create table की वही है, सिमिलर ही है। create table, new table name, as is the keyword, select स्टार फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल वेयर कंडीशन। तो ये देखो, अभी जो मैंने सिलेक्ट किया वो क्या है? हमारा वही है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट ये है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू A001। उसका जो आउटपुट आएगा उतनी कॉलम नए टेबल में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमें चेंज करना पड़ेगा ना। चलो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। Is select star from account. I have not created the another table, so let's say account, create table salary। is किसके जैसा? is, इसका आउटपुट क्या आएगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट का आउटपुट क्या है? चलो पहले वो रन करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट का आंसर ये आया। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ ये क्रिएट टेबल सैलरी एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, इसको रन कर रहा हूँ तो अकाउंट टेबल जैसा ही सैलरी अकाउंट सैलरी टेबल बन जाएगा, टेबल क्रिएटेड। लेट मी रन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। सो जो भी डेटा कॉलम था अकाउंट का वो पूरा आ गया। क्लियर? सो एंटायर टेबल। हाँ, डेटा भी कॉपी हो गया। हाँ डेटा भी कॉपी है, यू कैन सी ना, इज इट विजिबल? हाँ सर, विजिबल है। हाँ, तो डेटा भी आ गया ना, दिख रहा है ना डेटा, हाँ ओके। डेटा आ गया। ठीक है, नहीं लेना है तो भी मैं सिखाऊं बच्चे, डोंट वरी। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट में कुछ कॉलम करनी है। चलो चलो, उससे पहले सारा डेटा नहीं लेना है,
कुछ डेटा ही लेना है, सारा डेटा नहीं लेना है, कुछ डेटा ही लेना है, ठीक है। क्रिएट टेबल सैलरी न्यू, आईडी नंबर बैलेंस एज सिलेक्ट आईडी फ्रॉम आईडी कॉमा सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू वो है। तो यहाँ पे मुझे पहले चेंज करना पड़ेगा, क्या, अकाउंट, ठीक है। अकाउंट टेबल की कॉलम है, क्रिएट टेबल, हम नया टेबल बना रहे हैं सैलरी न्यू करके, ठीक है। उसमें आईडी नंबर कोमा बैलेंस ये दो कॉलम रहेगी हमारी। चलो मैं कॉलम चेंज कर दे रहा हूँ। ये क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट रुको। हाँ, नेम का मैं क्या रखूँ, नाम, चलेगा, नाम कॉलम का नेम रखें। दिस इज नॉन एज द एलियास, अलियास नेम, आईडी नंबर कोमा नाम। ये क्या है, आप जो नया टेबल बनाएंगे उसमें ये कॉलम नेम रिप्रेजेंट होगा, किसकी जगह, जो आपने यहाँ पे दिया है वहां पे। हम यहाँ पे दे रहे हैं आईडी कोमा, आईडी नहीं दे सकते, हमारी कॉलम क्या है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर कोमा नेम। तो अब क्या होगा, अकाउंट नंबर का नेम क्या हो जाएगा, आईडी नंबर, और नेम का क्या हो जाएगा, नाम। ओके, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ नाम, यू कैन राइट एनीथिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू A001। उसका मतलब क्या हुआ, डेटा कितना इसमें कॉपी होगा, जिसका अकाउंट नंबर A001 होगा वही होगा। लेट मी रन इट, टेबल क्रिएटेड, एंड मैं इसको हटा के सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी अंडरस्कोर न्यू, राइट। तो देखो कॉलम कौन सी आ गई, आईडी नंबर और नाम, जो हमने नए टेबल नेम के पीछे दी थी। ओके, यहाँ पे मैं कंपेयर करने के लिए पेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे कितना डेटा आया, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो भी आउटपुट आया वो, सिलेक्ट स्टेटमेंट में जिसका अकाउंट नंबर A001 है वही आउटपुट आया। क्लियर, आप अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन क्रिएट any table with any number of column with any data, ठीक है। सपोज मैं एक दूसरा टेबल बना रहा हूँ, सैलरी न्यू 1, सॉरी सैलरी न्यू 1, उसमें यहाँ पे एलियास ने मुझे कुछ नहीं देना है, नए कॉलम का नाम कुछ नहीं रखना है, लेकिन जो भी ओल्ड नेम थे वही रखने। एज यहाँ पे स्टार लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या हुआ, अकाउंट टेबल की सारी कॉलम आएगी, स्टार का मतलब फिल्टर में यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्या मुझे अकाउंट नंबर A001 एक ही आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लोन टेकन इज इक्वल्स टू बाय ES, जिसका लोन टेकन स्टेटस यस होगा उसका ही मुझे यहाँ पे सैलरी न्यू में मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो सैलरी न्यू 1 टेबल में क्या रहेगा हमारे पास, ऑल कॉलम विथ फ्यू रोज। तो ये सारा वेरिएशन हमने प्रैक्टिकल 1 में सीखा ना, सिलेक्ट स्टेटमेंट में, सिलेक्टेड कॉलम, सिलेक्टेड रोज, राइट। तो उसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बोला ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 2 सीख लिया तो 11 12 नहीं सीखेंगे तो चलेगा, आपको 1 2 9 सब कुछ याद रखना पड़ेगा। क्लियर, डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट। एक आएगा आपके माइंड में डाउट, क्या सर हमें डेटा नहीं लेना है तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही क्रिएट करना है, तो स्ट्रक्चर इट मींस अकाउंट टेबल की सिर्फ कॉलम और उसकी साइज ही इसमें करनी है, तो है मेरे पास है उसका भी आंसर। वो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला, लेकिन रुको, आप कितनी क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हो मुझे देखने दो।
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ सिखानी है, 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 10th, 10th नहीं। ओके, सो अभी सिर्फ स्ट्रक्चर कैसे करना है वो मैंने सीखा रहा हूँ। अभी हम ये सीखेंगे, रीनेम टेबल। टेबल को रीनेम करना है तो ओल्ड टेबल टू न्यू टेबल, सिर्फ इतना ही। रीनेम ओल्ड टेबल टू न्यू टेबल। जैसे मैं यहाँ की यही की बात करूँ, सिंटेक्स है रीनेम स्टूडेंट टू स्टूडेंट रिकॉर्ड। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीनेम सैलरी न्यू वन टू, कौन सा नाम दूं मैं, ओके न्यू टू, ओके न्यू टू। तो अभी जो हमारा सैलरी न्यू वन टेबल था उसका नाम न्यू टू हो गया। स्टेटमेंट प्रोसेस, ओके। तो अभी हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टू इंस्टेड ऑफ सैलरी न्यू वन, न्यू टू, वही मिल गया। तो ऐसे आप टेबल का नाम भी रीनेम कर सकते हो, ठीक है। फिर डिलीट कमांड, डिलीट कमांड से आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं डिलीट, डिलीट। अब देखो यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं तो डेटा तो हमें अगर फ्यूचर में जरूर पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको वर्ड फाइल मेंटेन करवाई ताकि आप दूसरी बार इंसर्ट वाली सिंटेक्स कॉपी पेस्ट करके डेटा एज इट इज रख सकते हो। अभी न्यू टू मेरे लिए प्रैक्टिस है, तो मैं डिलीट फ्रॉम न्यू टू कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम न्यू टू कर रहा हूँ, तो मुझे ये तीनों तीन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। हो गए 3 रोज डिलीटेड। अब लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टू, नो डेटा फाउंड। ओके नाउ टेल मी, सिर्फ डेटा डिलीट हुआ है कि टेबल डिलीट हुआ है, टेल मी। डेटा भी डिलीट हुआ, डेटा डिलीट हुआ है कि टेबल, टेबल भी डिलीट हो गया है? सिर्फ डेटा। सिर्फ डेटा, सिर्फ डेटा, यस राइट करेक्ट। सो हाउ वी कैन चेक टेबल इज देयर और नॉट? डिस्क्राइब। वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट। डिस्क्राइब न्यू टू, इससे भी मिलेगा और फाइंड टेबल में जाके भी मिलेगा। आ गया, ठीक है। फाइंड टेबल में जाके भी यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। न्यू टू है, ये रहा, क्लियर। सो सिर्फ डिलीट कमांड से डेटा ही डिलीट हुआ। अब ये रिकॉर्ड तो सारा डिलीट हो गया, पूरा पूरी एंट्रीज, ऑल टपल्स, ऑल रोज। आप बोलेंगे सर स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है तो करो, वेयर क्लोज अब लगा सकते हैं ना खुद से। डिलीट फ्रॉम न्यू टू वेयर account number is equals to A001, something like that. Let me give you example. देखो टेबल कौन सा है हमारे पास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सैलरी है कि नहीं हमारे पास, सैलरी है, डेटा है उसमें, हाँ है। तो अकाउंटेबल है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा। अकाउंट भी है, सैलरी भी है, ठीक है। ओके मैं अब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम सैलरी वेयर, कौन सी रो डिलीट करूं मैं, वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू A001, लेट से A001। तो आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिख सकते हो वेयर में, तो ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसमें आपका डेटा बहुत सारा चला जाएगा। वन रो डिलीटेड। अब चेक कर, इसको मैं कॉपी कर लूँ, फिर यहाँ पे लिखूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। Check the result. A001 is deleted, right? Just 1 minute, please.
सो एक ही रो डिलीट हुई। अब मैं आपको और एक चीज सिखाने जा रहा हूँ। और ओके, आपके माइंड में कोई वेरिएशन और कोई क्वेश्चन या फिर कोई आइडिया आ रहा है डिलीट करने में? सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है डिलीट करने में। सर अगर हम नेम दो दो रो दो डेटा में नेम सेम और वेयर में वो नेम रखे तो दो डिलीट होगा ना? यस, वेरी गुड राज। अगर हमारे पास ये कॉलम नहीं ले रहे, अकाउंट नंबर यूनिक कॉलम है इसलिए एक ही रो डिलीट हुई। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सिटी, सिटी इज इक्वल्स टू, स्पेलिंग क्या है, AHMEDABAD, अहमदाबाद। तो इसमें कितनी रो डिलीट होगी? कितनी होगी? दो, क्योंकि दो के सिटी सेम है ना। तो आपका अननेसेसरी डेटा भी डिलीट हो गया। तो आपको यहाँ पे टेक केयर करना है, इन वेयर कंडीशन यू नीड टू टेक केयर कि कौन सी कंडीशन लिखनी है। समझ में आ गया? जो यूनिक, इसलिए प्राइमरी की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दो टू रोज डिलीटेड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, राइट, सैलरी हो गई, दोनों रो डिलीट हो गई। फिर आप बोलोगे सर तो हम क्या करें, दोनों रो डिलीट हो गई, दोनों डुप्लीकेट रो हो तो? अगर प्राइमरी की अभी हमने सेट नहीं की है तो A001 आप डाल सकते हो डुप्लीकेट रो, तो दोनों रो डिलीट हो जाएगी ना, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, फिर से एक रो इंसर्ट कर लो। दैट इज द सिंपल थिंग, राइट। अब बाकी बचा कंसेप्ट, ऑर्डर बाय की जरूरत अभी नहीं है। ओके, नाउ यू कैन परफॉर्म दी ऑल द क्वेरीज फ्रॉम अकाउंट टेबल। अकाउंट टेबल की 10 क्वेरी है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? देन यू कैन आस्क। कोई क्वेरी, क्वेश्चन है? नहीं है? Then I am stopping my screen, stopping the recording. Now all of you go ahead and perform all the queries of account table. Word file maintain करते जाना। I will ask to share your screen and I will ask in a chat maybe. Clear?